السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد بن عبد اللہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا۔ بھائیو، کل سے پہلے والے دن تک ہم لوگ کیا ہے سورۃ الکہف کی کچھ تفسیر اور کچھ واقعات جو سورۃ الکہف کے اندر ہے وہ سنتے آ رہے ہیں۔ ایک واقعہ یہ سنیں ذوالقرنین کا، دوسرا واقعہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا جو واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 نوجوانوں کو کیسے بچایا، اس واقعے کو بھی ہم نے سنا۔ اس کے بعد ایک واقعہ آج آخری واقعہ ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر یا خضر دو بھی بول سکتے ہیں، حضرت خضر یا خضر دو بھی بول سکتے ہیں۔ دیکھیے، خضر کے معنی ہیں ہریالی، الاخضر کا معنی ہوتا ہے ہریالی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، جی ادھر بعد میں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بیان ہو گیا تھا۔ ایک آدمی آ کر پوچھتا ہے، اے موسیٰ ذرا ایک سوال کرتا ہوں، تھوڑا جواب دو۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، کیا ہے؟ کیا دنیا میں آپ کو جتنا علم ہے اتنا علم اور دوسروں کو بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا، میرے اتنا علم دنیا کے اندر کسی آدمی کے پاس نہیں ہے۔ سب سے زیادہ دین کی باتیں جاننے والا میں ہوں، سب سے زیادہ دین کی جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مجھے معلوم، میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے ناراض ہو گیا۔ غور سے سنو، بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں اس واقعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا، کہنے لگا، اے موسیٰ تم نے غلطی کی، یہ کام کرو، تمہارے سے بھی زیادہ دنیا کے اندر علم جاننے والا، علم کو رکھنے والا، تمہارے سے بڑا عالم دنیا کے اندر ایک آدمی ہے، وہ ہے خضر۔ یہ کام کرو، تم یہاں سے نکلو۔ اب نکلے، کون کون نکلے ساتھ؟ حضرت موسیٰ، ان کے ساتھ ایک اور نبی یوشع بن نون، ان کا نام کیا نام؟ یوشع بن نون۔ یہ حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد، انہوں بھی بنو اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یہ نبی بنے، حضرت یوشع بن نون، حضرت موسیٰ، ساتھ میں ایک مچھلی، ایسی مچھلی جو زندہ تھی، اس کو مار کر مسالہ وغیرہ لگا کر ٹفن میں رکھ کر توشے کی طرح لے کر گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بولا کہ تم جاؤ، ایسی جگہ جاؤ جہاں پر 2 سمندر ایک جگہ ملتے۔ اب حضرت موسیٰ بولے، اے اللہ 2 سمندر کہاں ملتے، مجھے کیا معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنٹ دیا، کیا؟ تم جو مچھلی لے کر جا رہے ہو، آپ کی مچھلی بعد میں گم ہو جاتی ہو، مچھلی جہاں پر گم ہو جاتی وہیں پر 2 سمندر ملتے، اور آپ کو جس آدمی کے متعلق میں نے کہا تھا وہ آدمی آپ سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، نکلے تینوں۔ جاتے جاتے راستے میں موسیٰ علیہ السلام تھوڑا تھک گئے تھے، آرام کرنے کے لیے لگ گئے، آرام کیے۔ جیسے ہی آرام کرنے نیند لگ گئی تو جو ٹفن میں سے جو مچھلی تھی اس میں مسالہ وغیرہ لگا کر رکھے تھے، وہ مچھلی زندہ ہو گئی، باہر نکل گئی، سمندر میں جا کر گر گئی، باہر نکل گئی۔ یہ کون ہے؟ سارا ماجرا، یہ سارا تماشا کون دیکھ رہے ہیں؟ یوشع بن نون دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ اٹھے، ان کو بتانا بھول گئے، ان کو بولنا بھول گئے کہ موسیٰ ایسا ایسا ہوا۔ دونوں چلو بھائی نکلیں گے، نکل گئے۔ جاتے جاتے حضرت موسیٰ کو بھوک لگی، آتینا غداءنا، بولے اے یوشع ذرا کھانا جو لائے تھے ہمیں دیو جی، کیا لائے ہو؟ بولے، اے موسیٰ میں بولنا بھول گیا آپ کو کہ جو مچھلی ہم پیک کر کے آئے تھے وہ زندہ ہو گئی اور نیچے چل گئی سمندر کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، پہلے ہی بولنا تھا آپ، یہی وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جانے کے لیے کہا تھا۔ پھر واپس ہوئے وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، وہاں پر گئے جہاں پر 2 سمندر ملتے، وہاں پر گئے۔ جا کر دیکھے کنارے سمندر کے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، ایک آدمی سمندر کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اب حضرت موسیٰ سمجھے کون ہے، جا کر بات کریں گے، کیونکہ ان سے ایک آدمی سے ملاقات کرنا تھا، ایک آدمی سے بات کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ سے بھی زیادہ علم جاننے والا ایک آدمی ہے۔ گئے
जाकर सलाम किए, अस्सलाम वालेकुम, बोले वालेकुम अस्सलाम। खिजर परेशान हो गए। हजरत खिजर जहां पर खड़े थे, मैं बोला था खिजर के माने हरियाली, आजू बाजू सारी हरियाली थी, पूरा हरिया 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 था, वहां पर हजरत खिजर खड़कर थे। बोले वालेकुम अस्सलाम, कौन हो भाई आप? हमारी कौम में आज तक कोई भी सलाम नहीं किया, पहली मर्तबा जो सलाम किए हजरत मूसा डर गए, हजरत खिजर डर गए। हाँ बोलो कौन हो आप? मैं मूसा हूँ। कौन मूसा? पूछे कौन मूसा? मुझे नहीं मालूम, मैं बनु इसराइल का एक नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा। ऐसा? अच्छा क्या, ठीक है। देखिए एक नबी है बनु इसराइल का, अल्लाह तबारक व ताला ने इतने मोजिजे दिए थे, हाथ में लकड़ी असा दिया था, अगर नीचे डालो तो अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए रास्ते खोल कर रख दिया था। ऐसा नबी उलुल आज़्म पैगंबर, इतना बड़ा पैगंबर एक के पास जाकर कहता है कि मैं नबी हूं, अल्लाह ने मुझे आपसे मुलाकात करने के लिए भेजा है। यहाँ पर गौर करने का मकाम है। ठीक है बोलो जी बात करें। ठीक है, बात करते करते दोनों हजरत मूसा और खिजर दोनों निकले, समंदर के पास गए। एक कश्ती आई, कश्ती आई, दोनों को बिठा लिए, बिठा लेकर आगे जाते गए। अचानक हजरत खिजर क्या करे, उस कश्ती का एक लकड़ी का जो तख्ता है, उस तख्ते को फोड़कर एक निकालकर बाजू फेंक दिए। वहां पर जाने से पहले हजरत मूसा को बोले, ऐ मूसा तुम्हारे अंदर सब्र है क्या नहीं? क्या बोल के पूछे। मैं क्या क्या करता हूं सब देखते रहना, सब्र करते रहना, सवाल नहीं करना, आप जो भी मैं करता हूं आप देखना, खामोश हो जाना। ये कहीं को करे, ये कहीं को करे, ये कहीं को करे, आप मुझसे सवाल नहीं करना। तो मूसा बोले ठीक है वैसा मैं नहीं करता सवाल। हजरत खिजर बोले नहीं, आप संभाल नहीं सकते, तुम्हें सब्र नहीं कर सकते, बीच में तुम्हें जरूर मेरे से सवाल करते सोच। ठीक है नहीं करता बोले। फिर भी बात तय हुई, दोनों कश्ती में बैठे, तख्ता निकाले, फेंक दिए बाहर फेंक दिए। हजरत मूसा बोले ऐसा कहीं को करे, इतनी अच्छी कश्ती है, सारे लोग उतनी दूर से जा रहे हैं, इस कश्ती को तुम्हें ऐसा कहीं को तोड़ डाले। हजरत खिजर बोले तस्बीर, तुम्हें सबर कर, तुम बोले फिर सबर नहीं किए। नहीं ठीक है आइंदा से नहीं करता बोले। एक हो गया, कश्ती से उतरे, दोनों बाहर जा रहे थे। एक छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। हुआ ऐसा कि हजरत खिजर क्या करे, एक बच्चे को बुलाए, 12 या 13 साल का बच्चा था, बुलाकर जबा करके छोड़ दिए। अब यहाँ भी हजरत मूसा को देखने नहीं हुआ, अरे ऐसा कहीं को करे भाई, बच्चे की जान ले लिए तुमने। फिर बोले आप, मैं क्या भी करता हूँ, आपको कुछ भी नहीं बोलना। कहीं को बोले नहीं बोलता आइंदा से। फिर बोले कि नहीं बोलता। अब आखिरी बार बोले, अगर आखिरी बार मैं अगर बोला तो आप अलग, मैं अलग, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, दोनों एक गांव के अंदर गए, लोगों को बोले हमारे को बहुत ज्यादा भूख लगकर है, हमारी मेहमान नवाजी करो। लोग बोले नहीं, हमें आपकी मेहमान नवाजी नहीं करते। दोनों अंदर गए। अंदर जैसे ही गए, एक दीवार वहां पर खड़ी थी, अम्मल जिदार फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना। मैं इसके बारे में मुकम्मल बोलूंगा बाद में। ये दीवार खड़ी थी, दीवार गिर रही थी। हजरत खिजर भागते हुए गए, उस गिरती हुई दीवार को खड़ा कर दिए। मूसा बोले नहीं बोलना था, फिर बोल दिए। ऐ खिजर, फिर कहीं को करे जी ऐसा, आप वो लोग हमारे को खाना भी नहीं खिलाए, हमारी मेहमान नवाजी भी नहीं करे, आप जाकर उस दीवार को क्यों रुके? आप गलत करे, नहीं करना था ऐसा। हजरत खिजर बोले आप नहीं बोलतू, बल्कि वादा किए थे। फिर बोले, दोनों में बातचीत, दोनों अलग अलग हो गए। बाद में हुआ, बातचीत हो गई तो सबसे पहले जो मसला हुआ था, कौन सा? कश्ती में जो तख्ता निकाल कर फेंक दिए थे। हजरत खिजर बोले मैं ऐसा कहीं को कराया, इसलिए किया कि उस कश्ती में जितने भी लोग थे सारे के सारे मछुआरे थे, मतलब मछलियां पकड़कर जिंदगी गुजारने वाले थे, बेचारे पूरे गरीब लोग थे। अब वहां पर एक बादशाह था, जालिम बादशाह। उसका काम क्या? जिस किसी भी कश्ती को देखता तो लूट लेता, जुल्म करता, सारा सामान ले लेता। अब अगर कश्ती अच्छी नहीं रहती तो उस कश्ती वालों को छोड़ देता कि गरीब रहते लोग, बोल के छोड़ देता। इसीलिए मैं होना बोलकर क्या किया, उस कश्ती का एक तख्त निकाल कर फेंक दिया। अगर मैं कश्ती का तख्त निकाल कर ना फेंकता तो बादशाह आकर सारे लोगों का माल लूट लेता, उनका सारा माल लेकर चला जाता। एक सवाल का जवाब हो गया। दूसरा जो सवाल का जवाब था, बच्चे को क्यों कत्ल किए, बच्चे को क्यों ज़बह किए? बोले वो बच्चा जो था, वो बच्चा छोटा था, लेकिन बड़ा होने के बाद वो बच्चा काफिर बनने वाला था। उस बच्चे के अंदर काफिर बनने का इम्कान बहुत ज्यादा था। माँ बाप भी बच्चे की मोहब्बत में आकर बच्चे के साथ काफिर बन सकते थे। इसीलिए मैं बच्चे को अगर कत्ल कर दिया तो बच्चे के माँ बाप जैसे कि वैसे बचकर रहते थे। इसीलिए क्या कहिए, उस बच्चे को कत्ल कर दिया। और इसमें
हजरत अब्बास इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु इसकी तफसीर में नीचे लिखते हैं कि वो जो बच्चे की माँ थी उस वक्त हमल से थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उस बच्चे की माँ की गोद से कई नबियों को जन्म दिया। वो क्या है उसकी तफसील ज्यादा नहीं है, ये इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की एक तफसीर थी। उसके बाद तीसरा जो है वो दीवार को क्यों गिराया, इसलिए गिराया वो दीवार क्या है, वह अम्मल जिदार फकान लिगुलामैन यतीमैन, 2 यतीम बच्चों की दीवार थी। उनका बाप क्या है उसको दीवार को बना कर गया था, उसके नीचे वकाना तहतहु कंजुल लहुमा, उसके नीचे खजाना था। वो खजाना किसका था, यतीम बच्चों का था। 2 यतीम बच्चों का खजाना था। अगर वो दीवार वैसे की गिर जाती तो सारे गांव वाले आते, सारा खजाना लुट कर चले जाते, बेचारे बच्चे यतीम के यतीम हो जाते, क्योंकि उनका बाप क्या था, वकाना अबूहुमा सालिहा, नेक बाप था उनका। इसलिए मैं जाकर क्या है उस दीवार को जैसे कि वैसे खड़ा कर दिया। इतना सारा इल्म, हर चीज का इल्म हजरत खिजर को मालूम था। अब मालूम हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे से भी ज्यादा जानने वाली दुनिया के अंदर एक है। बाद में दोनों गए समंदर के किनारे, बातें कर लेते बैठे थे। एक परिंदा आया, उतना बड़ा समंदर, इतने बड़ा समंदर में एक परिंदा आया, आकर क्या किया, चोंच मार के पानी का कितने खतरे निकलते थे एक सब परिंदे के मुंह से, कितने खरीद, 1 2 ज्यादा से ज्यादा 3, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं निकलता। वो पानी जैसे लिया वो खतरे नीचे गिरे तो हजरत खिजर बोले मूसा देखो जो खतरे नीचे गिरे मेरे और आपका इल्म उतना अच्छा, मैं और आप उतना जानते सो, कितने भी बड़े हम आलिम अल्लामा मुफ्ती फला 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 क्या भी बन जाओ, हमें उतने जानते सो। अब ये जो समंदर है ना, ये सारे का सारा इतना ज्यादा इल्म किसके पास है, मेरे और आपके रब के पास है। मालूम क्या हुआ, कोई भी इतराना नहीं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिया, मैं बड़ा आलिम, मैं बड़ा मुफ्ती, मेरे पास बहुत ज्यादा इल्म है, तो मेरे से कम कोई भी कम नहीं, कोई भी ज्यादा नहीं, हर कोई अपने अपने बराबर। बस बात करने का सलीका होना, बस लोगों को समझाने का सलीका होना, हर किसी को अदब देना, चाहे हमारे से कम पढ़ा हुआ क्यों ना हो, उसके साथ अदब और एहतराम के साथ बात करना, उसकी इज्जत का ख्याल करना, उसके एहतराम का ख्याल करना, कि उसके ख्याल करना। हर आदमी की उसकी अदब, अगर उसका अदब करेंगे तो यकीनन हम दुनिया के अंदर कामयाब हो जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिया, उन्हें कम है, मैं उसके साथ कई को बात करना नहीं बात करता, ये सब नहीं रहना। हजरत मूसा के एक जुमला अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आया, तो ये इस बात से क्या मालूम हुआ, इल्म का फितना हो सकता था, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको खत्म कर दिया। तो कुल मिलाकर सूरतुल कहफ के अंदर 4 वाकयात थे। एक वाकया जुल्करनैन का, वो वाकया किसका, वो फितना कौन सा फितना था जी, याजूज माजूज का फितना था लोगों में, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुतालिक खत्म कर दिया। उसके बाद माल का फितना, गुरूर और घमंड की वजह से वो यतीम एक बाग वाले का वाकया था, अल्लाह तबारक व तआला ने रातों रात उसकी तकब्बुर की वजह से बाग को सत्यानाश कर दिया। और ये वाकया हजरत इल्म का वाकया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर का। एक और वाकया असहाबे कहफ गार वालों का वाकया। जो बंदे नेक होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद करता है, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला उनका ख्याल करता है किसी न किसी तरीके से। बस हमारी नीयत अगर अच्छी होगी तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करता है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी अपनी रहमत हम पर नाजिल फरमाता है। उसी के अंदर एक दुआ थी, वो दुआ सिखलाई गई थी। वो दुआ मुझे और आपको चाहिए कि हमेशा हम वो दुआ का एहतमाम करें, हम हर हाल में, हर नमाज के बाद या चलते फिरते उस दुआ का एहतमाम करें और दुआ को पढ़ें। देखिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए बहुत ज्यादा रास्ते खोलेगा, यकीनन खोलेगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमा, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।